Hello children. So once again I am back here with the second part of the chapter 3, Glimpses of the Past. In our previous video we read 3 points of this chapter, Glimpses of the Past, in which first one was of the martyrs. We read about Lata Mangeshkar and other freedom fighters being imagined by Jawaharlal Nehru. Then in the second point we read about the conquest, the company's conquest. Which company it was? The East India Company, British East India Company. And they started conquering our Indian portion. And what was the main reason behind it? Because of the superior weapons they had. And the second most important, the reason for this company's conquest over our India was a divide and rule, because there was a rivalry going on between the Indian kings themselves, यानी आपस में ही हमारे इंडियन के जो किंग्स और राजा और प्रिंस थे वो झगड़ते थे, और इसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और धीरे धीरे ये अपना एम्पायर एक्सटेंड करने लगे. Then in the third part, that was from 1765 to 1836, British rule. How this British started ruling over our India. First, we read about our own religious leaders who preached untouchability and child marriage, जो untouchability और child marriage को बढ़ावा दे रहे थे, और उन्होंने वुमेन को सारे दुखों की जड़ माना. कौन? हमारे खुद इंडियन जो रिलीजियस लीडर्स थे वो ही. देन हाउ द इंडियन स्टार्टेड लूजिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट, किस तरह से वो लोग ब्रिटिशर्स की चापलूसी करने लग गए, और किस तरह से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में अपना बिजनेस फैलाने लगे. धीरे धीरे उन्होंने हैवी टैक्सेस एक्सटेंड किए अपने इंडिया में, और हाउ दिस पीपल वांट टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स इन आर इंडिया, और इस तरह से दिस पीपल स्टार्टेड इम्प्लाइंग हैवी टैक्सेस ऑन द फील्ड्स, ऑन फार्मर्स, एंड इन दिस वे, as we read, between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. Okay. Then in the last point we read that how our Indian artisans, means the people who earn money with the help of the art, the things made by their hands and other business. So the British policies destruct these artisans of our India, and they started crippling the Indian industries day by day. Okay, now in the next point, fourth point which we are going to start today, it was in the year 1772 to 1833, Raja Ram Mohan Roy. I think everybody is known to this name. He was a learned man, quite intellectual person, having quite knowledge, and he came to know what was the reason behind the rule these people, this British East India Company, these Britishers are having in our India. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. When he saw the condition, what was going on in our country, he came to know that what was wrong, actually what was the reason behind what is going on in our country. He belongs to Bengal. Then let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. So here he want to say, Raja Ram Mohan Roy, let us not despise ourselves. डिस्पाइज का मतलब हम खुद ही हमारी इंसल्ट इन लोगों से करवाते हैं, हम अपनी ही उपेक्षा इन लोगों से करवाते हैं. आर एंशंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा खुद का इंडियन कल्चर इतना ग्रेट है कि हमको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं, किसी और के कल्चर को अपनाने की ज़रूरत नहीं है. वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. जैसे कि इंडियन प्रिंसेस ने ये मान लिया था कि ब्रिटिशर्स से हमको बहुत हेल्प मिल रही है, ये बिज़नेस में मास्टरमाइंड है, फैक्ट्रीज़ में गुड्स प्रोड्यूस करने में मास्टरमाइंड है,
और यही सोच थी जिस वजह से हमारे इंडियंस पिछड़ रहे थे और हमारे कंट्री में इन ब्रिटिशर्स को मौका मिला अपना एम्पायर एक्सटेंड करने का। तो राम मोहन रॉय का ये मानना है कि हम अगर चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस। तो हमको खुद को सबको मिलकर हमारी सोसाइटी को एक नया रूप चेंज करना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास ने हमारी सोसाइटी को, हम लोगों को पीछे कर दिया है और यही सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण है। दिस इज़ द रीज़न फॉर रूइनिंग अस। यानी हम आपसी अंधविश्वास, अनटचेबिलिटी, बाल विवाह, जाति प्रथा, ये सारी इन्हीं प्रथाओं की वजह से हम पीछे होते जा रहे थे और इन्हीं चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. So here he had given a good example. He talks to his wife Uma and says, cows are of different colors. काव का जो कलर होता है सब अलग अलग तरह की, कोई डार्क होती है, ब्लैक होती है, कोई भूरे रंग की होती है, लेकिन जब वो दूध देती है वो वाइट ही होता है, यानी द कलर ऑफ द मिल्क इज़ सेम। उसी तरह से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यानी हर टीचर की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना ओपिनियन होता है। हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को देखता है, लेकिन हर टीचर का एक ही मकसद होता है, एक प्रॉपर नॉलेज देना किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो किसी भी तरीके से दे। ओके, ओनली द वे शुड बी राइट। सो ही सेज दैट डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। तो चाहे कोई भी रिलीजियस लीडर हो, वो कोई भी रिलीजन को प्रीच करता हो, अपने रिलीजन के बारे में बताता हो, लेकिन इन सब का मकसद एक ही होता है ना, द एसेंस ऑफ द रिलीजन इज़ द सेम। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. राम मोहन रॉय जो थे वो किससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे? साइंस और मॉडर्न नॉलेज। ही सेज नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। हम जो ज्ञान लेते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ना कि अंधविश्वास जैसी चीज़ों को बढ़ावा देने में, जात पात इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने की बजाय हम अपनी कंट्री को डेवलप करने में यूज़ करें, अपनी नॉलेज का साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली यूज़ करें। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड दैम। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड मतलब कि उन्होंने इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ का टूर किया, इंग्लैंड गए ये देखने के लिए कि क्या रीज़न है, इन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा इनके पास क्या है जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल बनाता है। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर उन लोगों को, जो ब्रिटिशर्स के साथ जब इन्होंने मीटिंग की, तब उन्होंने उनको कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। आप हम पर राज करते हो, रूल करते हो, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। मतलब ये हमको गुलाम नहीं, स्लेव्स नहीं, बल्कि आप हमसे जो भी काम लेते हो उसके बदले में हमको उसका पे किया जाना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। जब कोई भी मास्टर अपने किसी भी वर्कर से काम लेता है तो उस मास्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस वर्कर के प्रति कि उसको जो चाहिए, उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, उसको जो चाहिए उसको पे किया जाए, उसके ऊपर कोई किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह का अत्याचार ना हो, गुलाम की तरह नहीं, एज ए सब्जेक्ट की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। सो हियर ही टॉक्स टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन सस्पिशियस यानी शक की नज़र से देखना, ब्रिटिशर्स को लगा कि
इस न्यूज़पेपर से हो सकता है इंडियंस जो है इनकी बातों में आकर हमारा विरोध ना कर दें, तो उन्होंने ये न्यूज़पेपर बैन करवा दिया, बंद करवा दिया इन 1823. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ ऑपरेशन. ओके, ऑप्रेस करना. ऑप्रेस इन 1765 to 1835. ऑप्रेस हियर मीन्स किसी भी लोगों का या कल्चर का या कंट्री के ऊपर अत्याचार करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, डेवलप नहीं होने देना, अपने अंडर में लेना. तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1765. द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस, यानी जो ब्रिटिश थे ये कॉन्स्टेंटली इंडियंस को ऑप्रेस कर रहे थे, इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे. इन 1818 they had passed regulation 3. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. यानी इस रेगुलेशन एक्ट के तहत इसके अंदर एक रूल था कि अगर इंडियंस कोई भी बात नहीं मानते हैं या कोई भी गलती करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, तो बिना कोर्ट में पेशी दिए, ट्रायल के, उनको सीधा जेल में डाला जाए. जनरली क्या होता है, कोई भी पर्सन कुछ भी क्राइम करता है या कुछ भी करता है तो सबसे पहले कोर्ट में उसका ट्रायल होता है, पेशी होती है, उसके बाद सज़ा का अनाउंस किया जाता है. लेकिन इन्होंने क्या रेगुलेशन निकाला कि जो भी होगा इनको सीधा जेल में डालना है. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस. यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे इंडिया में आए, दे स्टार्टेड ड्रॉइंग बिग सैलरीज, यानी अपने ही ऑफिसर्स को काम पे लगाना और उनको बड़ी बड़ी तनख्वाह, बिग सैलरीज देना. एंड दे ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस. और जो इन्होंने प्राइवेट बिजनेस अपने स्टार्ट किए इंडिया में, इसके अंदर फॉर्चून का मतलब लक, तो काफ़ी लकी रहे और अपना बिजनेस स्प्रेड करने लगे. बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. यानी कि ब्रिटेन से गुड्स एक्सपोर्ट हुए हमारे इंडिया में 7 करोड़ रुपीज़ के 1829 में. तभी The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. Means ब्रिटिश जो थे वो फल फूल रहे थे, फ्लरिश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, डेवलप हो रहे थे. ऑन द कंपनीज़ लूट, यानी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूट मार मचा रखी थी इन्होंने हमारे इंडिया में, इसका फ़ायदा इनको होने लगा. ब्रिटिश के जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, बिजनेस है, ट्रेड्स है, ये सारे बढ़ने लग गए और हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, मरती गई. एट दैट टाइम गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम हियर मीन्स रिपोर्टेड टू इंग्लैंड. उन्होंने इंग्लैंड में ये न्यूज़ पहुंचाई कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. यानी जो कॉटन वीवर्स थे हमारे इंडिया के, वीवर्स का मतलब जो बुनने का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, तो जो कॉटन वीवर्स यानी जो किसान थे कॉटन प्रोड्यूस करने वाले, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो ये धीरे धीरे हमारे इंडिया को सींच रहे हैं. यानी कि इन कॉटन वीवर्स का, इन किसानों का फ़ायदा ये ब्रिटिशर्स उठाने लग गए थे. सारी मेहनत हमारे इंडिया के किसान करते थे और इसका सारा बेनिफिट ये लोग उठाते थे. बहुत ही कम टैक्सेस में अपने कंट्री में इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारा टैक्स लगता ही नहीं था. तो बहुत कुछ ये लोग पैसा कमा लेते थे बचाकर. नेक्स्ट 6th पॉइंट इज़ डिससेटिस्फैक्शन. डिससेटिस्फैक्शन यानी सेटिस्फाई नहीं होना.
तो 1835 to 56. Now here see, education in India was in Persian and Sanskrit. यानी कि हमारे इंडिया में उस समय या तो संस्कृत या फिर फ़ारसी लैंग्वेज चलती थी। तो 1835 में मैकले नाम का एक पर्सन, उसने एक चेंज किया। क्या चेंज किया? उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज हमारे इंडिया में स्टार्ट की। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम यहाँ के नेटिव्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं। इससे क्या होगा, इनके खुद के एक कैटेगरी बन जाएगी लोगों की जो इंग्लिश पढ़े लिखे हुए होंगे और वो उनको अपने काम के लिए यूज़ करेंगे। ओके, सो ही सजेस्टेड स्टार्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और उसकी बात पर दूसरे भी एग्री हो जाते हैं। इंग्लिश एजुकेशन, यू कुड सी हियर, English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. तो इस तरह से क्या हुआ, इंग्लिश पढ़कर ये लोग वर्कर्स तैयार करते थे और बहुत ही कम यानी छोटी छोटी जॉब्स में उनको लगा देते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स मीन्स क्वाइट इंटेलिजेंट, जिसको हम हिंदी में बुद्धिजीवी कहते हैं। तो एक नई जनरेशन तैयार हुई इंटेलेक्चुअल्स की। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इस तरह से कुछ हमारे इंडियंस थे, उनको एहसास हुआ कि ये तो इस तरह से हमारे इंडियंस को इंग्लिश में ट्रेन करके सब अपने क्लर्क्स बना देंगे और हमारा जो इंडियन नॉलेज है, इंडियन इंटेलेक्चुअल है, वो लोग अपने लिए यूज़ करेंगे। तो इन लोगों ने सजेस्ट किया कि अब हमको अपने ब्रदर्स को खुद एजुकेट करना पड़ेगा, हमारे इंडियंस को, और उनकी मटेरियल कंडीशंस भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और एक का ये कहना था, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन इसके लिए हमको अपनी शिकायत, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में करनी पड़ेगी। By 1856, the British had conquered the whole of India. Now, in the first, I have already told you that thing, that just have a look over the map on the first page, second part में, the company's conquest में, उसमें पिंक पोर्शन कितना था और येलो पोर्शन कितना था। और अब इस मैप में देखो 1865 में 56 में हमारे इंडिया की क्या कंडीशन हो गई थी कि ब्रिटिश ने लगभग हमारे इंडिया को अपने कब्ज़े में ले लिया था। यू कुड सी द स्टेट्स ऑफ आवर इंडिया एंड ब्रिटिश एरिया कितना है। ये जो पूरा पिंक पोर्शन है ये सारा ब्रिटिश ने हमारे ऊपर, हमारे इंडियन कंट्री पर कब्ज़ा कर लिया था। तो कितना पोर्शन उन्होंने 1856 तक कवर कर लिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, यानी जो ब्रिटिशर्स थे ये इंडियंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, उनकी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते हैं। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स। तो एक पर्सन यहाँ कहता है कि हमारे जो राजा हैं वो इन ब्रिटिशर्स के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स, यानी इंडियन प्रिंस के अंडर में काम करना एज अ मंत्री, एज अ मैनी पोस्ट आर देयर। तो धीरे धीरे ये अपने जॉब्स गंवा रहे थे और एंड लैंड्स यानी अपने राज्यों को भी, किंगडम्स को भी गंवा रहे थे। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, और धीरे धीरे हमारे ब्रदर्स को यानी इंडियंस को भी कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि उनका धर्म भी कन्वर्ट कर रहे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो ये कहता है कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमको या हमें मिलकर इन ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से बाहर भगाना होगा, निकालना होगा। नहीं तो अगर इन्होंने कुछ राज्यों पर अगर और कब्ज़ा कर लिया तो लगभग हमारे इंडियन कंट्री, हमारा इंडिया इन लोगों के अंडर में आ जाएगा। Okay, so here we have completed our second part of this chapter and 3 points.
Now last 3 points we are going to see in our next video. Thank you.